Today in this video we are going to understand about the causes of abnormal behavior. So क्या causes है abnormal behavior के? तो generally 3 types में divided है, that is biological causes, psychosocial causes and the sociocultural causes. And now we are going to understand about all those causes one by one. So let's start. So the first one is biological causes. So what all are included in biological causes? We know that in biological model of abnormal behavior, we saw certain conditions which causes abnormal behavior and which are included in that model. In the same way, we are going to study certain aspects of our biology that is responsible for our abnormal behavior. So what are included in biological causes which causes abnormal behavior? They are nerve impulse, synapse, then imbalance of endocrine gland, faulty genes, physical structure, laxity of brain and absence of physical health. So all these factors are responsible of abnormal behavior and they are part of biological causes. So we will understand it one by one, all this that is the causes. So the first one is nerve impulse, synapse. So let's understand. Now what happens is, for proper coordination, for proper motor function. Now what are motor functions? Motor function means the agility to balance, the promptness or the coordination of our brain. So if we move hands, we are coordinating it. So all those movements or all those balances are included in motor functions. So this coordination of brain and motor functions are played by the nervous system, and thus our nervous system is very important. So our nervous system is made up of cells which are known as neurons. So we know that neurons are present in our brain, and thus because of this neurons our brain communicates, or our brain tries to coordinate and tries to coordinate the motor functions. So now what happens is, generally the nerve impulse reaches the sensory from the sensory organ to the brain, and then it gives order to the brain to reach a motor organ through neurons. सो व्हाट हैपन्स इज, अगर कुछ हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को कुछ फील हो रहा है तो वो नर्व इम्पल्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा, एंड देन ब्रेन उसको सिग्नल देगा कि जो मोटर ऑर्गन है उसको बैलेंस करो. नाउ व्हाट हैपन्स इज, जनरली ये जो मैसेजेस होते हैं वो न्यूरॉन्स तक जो पहुंचते हैं वो नर्व इम्पल्स से पहुंचते हैं. अब नर्व इम्पल्स क्या होता है? नर्व इम्पल्स इज़ इलेक्ट्रिकल केमिकल प्रोसेस. तो जो हमारे नर्व्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिकल केमिकल प्रोसेस होता है, उनके बीच में इलेक्ट्रिकल सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, एंड उसके बेसिस पे वो जो है कम्युनिकेट करते हैं. नाउ व्हाट हैपन्स इज, ये जो दो न्यूरॉन्स कम्युनिकेट कर रहे हैं नर्व इम्पल्स के बेसिस पे, तो जो दो न्यूरॉन्स हैं वो कनेक्टेड नहीं होते हैं, बट उनके बीच में एक स्पेस होती है, तो उस स्पेस को हम बोलते हैं सिनेप्स. अब अगर कोई अबनॉर्मल बिहेवियर रिजल्ट होगा तो किस वजह से होगा? क्या तो हमारा जो नर्व इम्पल्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, दैट इज़ जो हमारा इलेक्ट्रिकल केमिकल प्रोसेस है वो काम नहीं कर रहा है, आइदर आर हमारे जो न्यूरॉन्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और या फिर जो हमारा सिनेप्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है. सो लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स. सो ओवर हियर यू कैन सी दिस इज न्यूरॉन, वन न्यूरॉन, एंड दिस इज द अदर न्यूरॉन. So we have understood this neuron and the synapse process in the biological model. So once again we are doing over here. So you can see over here this neuron. This part is known as head of the neuron, and this is the tail of the neuron. Okay, and this small hair-like structure are known as dendrites, and over here in the center it is known as nucleus. Okay. Now what happens is, generally this tail, that is the axon, it releases the message in the synapse. That is because of the action the nerve impulse is released in the synapse. Now this space between the two nerve system, it has chemical in between. So what happens is, when an neuron transmits a message, it goes into this space and then it goes to the head of the second neuron. So this way a normal message transmission helps. But what happens is, if this is not happening, what would happen is, जब ये न्यूरॉन अपना मैसेज ट्रांसमिट करेगा तो वो यहाँ इस न्यूरॉन को नहीं मिलेगा, बट वो क्या होगा, ये सिनेप्स में घूम के वापस से इसको ही मिल जाएगा. मतलब फर्स्ट न्यूरॉन ने मैसेज ट्रांसमिट किया, इट इज़ नॉट गोइंग टू द सेकंड न्यूरॉन बट इट इज़ कमिंग बैक टू द फर्स्ट वन. सो अगर जो मैसेज है वो फर्स्ट न्यूरॉन को ही वापस आ जाता है तो हम उस प्रोसेस को रीअपटेक बोलते हैं. सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रीअपटेक. And now what happens is, because of this reuptake there is a possibility of having disorder like depression. So if your impulse is not working properly, if your synapse is not working properly, then certainly
यू विल हैव डिसऑर्डर, एंड जो ये रीअपटेक प्रोसेस हो रहा है उसके वजह से जनरली जो है डिप्रेशन इंडिविजुअल में देखा जाता है. नाउ इफ एन इंडिविजुअल वांट्स टू स्लो डाउन हिज डिप्रेशन, दे हैव टू टेक सम एंटी डिप्रेसिव ड्रग. सो वी नो दैट जो इंसान डिप्रेशन से फेस कर रहा होता है तो जनरली वो एंटी डिप्रेसेंट ले रहे होते हैं. दैट इज़ बिकॉज उनको जो है अपना रीअपटेक प्रोसेस सही करना होता है. देन व्हाट हैपन्स इज, जनरली अगर नर्व इम्पल्स में इम्बैलेंस है तो दैट वुड कॉज मेंटल स्ट्रेस एंड ऑनसेट ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर. सो अगर नर्व इम्पल्स जो है हमारा इलेक्ट्रिक केमिकल जो प्रोसेस है अगर उसमें भी हमारा इम्बैलेंस है, देन इट वुड क्रिएट मेंटल स्ट्रेस एंड ऑल्सो जो हमारा अबनॉर्मल बिहेवियर का ऑनसेट भी वो शुरू कर देगा. ओके. देन अगर जो हमारा सिनेप्स है उसमें बायोकेमिकल्स होते हैं लाइक डोपामाइन, नॉर एपिनेफ्राइन, सेरोटोनिन, गाबा एक्सेट्रा. नाउ दिस नॉर एपिनेफ्राइन इज ऑल्सो नोन एज नॉन एड्रेनलिन. सो जब ये केमिकल्स में इम्बैलेंसेस होते हैं तो सर्टेन अबनॉर्मल बिहेवियर्स देखे जाते हैं. जैसे कि अगर हमारा डोपामाइन इरेगुलर हो तो हमारा वो साइकोसिस में रिजल्ट करता है. एंड नाउ वी अंडरस्टूड इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो व्हाट साइकोसिस मीन्स जो इंडिविजुअल है वो रियलिटी के साथ कॉन्टैक्ट लूज कर देता है. दैट इज़ ही इज़ अवे फ्रॉम द रियलिटी. सो ऐसी जो सिचुएशंस क्रिएट होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डोपामाइन इरेगुलरिटी. ओके. देन अगर नॉर एपिनेफ्राइन दैट इज़ नॉन एड्रेनलिन जो है अगर उसका इम्बैलेंस है तो व्हाट वुड हैपन इज देयर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ हैविंग ट्रॉमा डिसऑर्डर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, देन पैरालिसिस एक्सेट्रा. सो अगर नॉर एपिनेफ्राइन हमारा इरेगुलर है या इम्बैलेंस्ड है तो हमें ट्रॉमा डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, देन पैरालिसिस हो सकता है. अब वो क्यों होता है? बिकॉज ये जो नॉर एपिनेफ्राइन है वो क्या रोल प्ले करता है, वो जो हमारा रिएक्शन है कोई चैलेंजिंग सिचुएशन को या डेंजरस सिचुएशन का या फिर कोई शॉकिंग सिचुएशन हो गई उसको वो मेंटेन करता है. अब अगर हमारा नॉर एपिनेफ्राइन इम्बैलेंस्ड है तो क्या होगा, अगर हमारे कोई चैलेंजिंग या डेंजरस सिचुएशन आएगी हम उसको टैकल नहीं कर पाएंगे एंड दैट वुड रिजल्ट इनटू ट्रॉमा डिसऑर्डर्स और इट मे कॉज हार्ट प्रॉब्लम्स एंड इवन पैरालिसिस. ओके. देन इफ देयर इज इम्बैलेंस इन सेरोटोनिन, अब जो सेरोटोनिन है अगर उसमें कुछ इम्बैलेंस आता है देन इट कुड क्रिएट डिप्रेशन, ट्रॉमा और इमोशनल डिसऑर्डर्स. सो अगर कोई इमोशनल डिसऑर्डर है, ट्रॉमा है, डिप्रेशन है तो उसका एक रीज़न सेरोटोनिन का इम्बैलेंस भी हो सकता है. नाउ जो हमारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं दे आर बिकॉज ऑफ द गाबा. नाउ ये जो गाबा है वो प्रीडोमिनेंट न्यूरोट्रांसमीटर है. अब इसका गाबा का फुल फॉर्म क्या है? गाबा एमिनोब्यूटिक एसिड. सो ये जो है ये हमारा जो ट्रांसमिशन होता है वो हमारा प्रीडोमिनेंट जो केमिकल होता है वो गाबा ही होता है. अगर गाबा हमारा इम्बैलेंस्ड है तो वो हमको एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है. So this was all about the messages that transmit through nerve impulse, neurons, synapses and the biochemicals that are present in the synapse. So अगर उनमें disorder आता है तो ये सारी चीज़ें हो सकती है. Now in biological causes there are certain different causes also, that is endocrine glands. अगर अब endocrine glands में imbalance है तो क्या होगा, हमारा जो behavioral disorders है हमें वो देखने मिलेगा, then mental retardation होगा and psychosomatic disorders होंगे. नाउ मेंटल रिटार्डेशन इज मीन्स जितना ग्रोथ हमारा ब्रेन का होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, वो सर्टेन पॉइंट पे वो स्टॉप हो जाता है. बिहेवियर डिसऑर्डर हमें पता है कि हमारा जो बिहेवियर है जिस तरह से नॉर्मल सिचुएशन में हमें बिहेव करना चाहिए हम वो नहीं कर पा रहे हैं. एंड देन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर. अब वो साइकोसोमेटिक क्या होता है? साइको मीन्स रिलेटेड टू ब्रेन एंड सोमेटिक मीन्स उसका जो इफेक्ट है वो हमें बायोलॉजिकली हमारे बॉडी पे देखने मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे जो डायबिटीज़ होती है वो भी एक तरह की साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ही है, बिकॉज डायबिटीज़ जो है वो हमारे टेंशन से भी इंक्रीज़ होती है. जो अगर हमें टेंशन आ रहा है दैट मीन्स वो हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया एंड उसकी बेसिस पे हमारा जो ब्लड शुगर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स हमें वो सोमेटाइजेशन हो रहा है, हमारे वो बायोलॉजिकली वे में हमें देखने मिल रहा है. सो जो अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में इम्बैलेंस है तो हमें ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स भी देखने मिलते हैं. ओके. देन इफ़ अगर जो थायरॉक्सिन है दैट इज़ जो थायराइड ग्लैंड हमारा प्रोड्यूस करता है वो अगर हमारा कम है तो हमें लाइक क्रिटिनिज्म हो सकता है. देन ऑल्सो अगर हमारा पेनक्रियाटिक ग्लैंड है जो हमारा अगर इंसुलिन कम प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारा साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज़ हो सकता है. वी नो दैट कि पेनक्रियाज का जो सर्टेन जो काम है वो ये है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करना. एंड व्हाट डज इंसुलिन डू इज़ जो हमारे ब्लड में शुगर होती है वो उसको मेंटेन करता है. नाउ अगर हमें टेंशन आ रहा है, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, हमारा पेनक्रियाटिक ग्लैंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो जनरली क्या होगा इसके अंदर कि जो हमारा इंसुलिन है वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा एंड सो जो हमारा शुगर लेवल है हमारे ब्लड में वो इंक्रीज हो जाएगा एंड दैट वुड रिजल्ट इनटू डायबिटीज़. ओके. देन जो हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड है
वो हमारा एसोसिएटेड है इमोशन से। अगर अब इसमें कुछ कमी आ रही है, इम्बैलेंस आ रहा है एड्रेनलिन ग्लैंड में, दैट इज़ जो हमारा जो एड्रेनलिन ग्लैंड हमारा रिलीज़ करते हैं केमिकल्स, उसमें अगर कुछ कमी आ रही है तो हमारा वो इमोशनल जो इम्बैलेंस है या अबनॉर्मल बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू आर इमोशन, वो देखने मिलेगा। सो ये जनरली हमारे थे ग्लैंड्स के बारे में जो वो हम जो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं उस हिसाब से। नाउ देयर आर सर्टेन जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो दैट रिजल्ट इन टू अबनॉर्मल बिहेवियर एंड विच आर इंक्लूडेड इन बायोलॉजिकल कॉजेज। तो जीन्स जनरली हम जानते हैं कि पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं, एंड वो जो जीन्स हमें हेरिडिटी में मिलते हैं उसके अंदर हमारा फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों डिफाइंड होता है। अब जनरली वी नो दैट वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, दैट इज़ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नाउ व्हाट हैपन्स इज कभी कभार जीन्स में 46 की जगह पे हमारे पास 47 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। अब ये जो 47 क्रोमोसोम आ गया तो उसमें क्या होगा कि जनरली जो इंडिविजुअल है उसमें डाउन सिंड्रोम हमें देखने मिलेगा। अब जैसे डाउन सिंड्रोम क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो जो ये डाउन सिंड्रोम वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनका फेस जो है थोड़ा फ्लैट होता है और थोड़ा ऐसे वाइड होता है, मतलब थोड़ा चौड़ा फेस मिलेगा और थोड़ा फ्लैट मिलेगा। एंड ऑल्सो जो उनका इंटेलिजेंस होता है वो थोड़ा जो एवरेज जितना इंटेलिजेंस चाहिए होता है उससे कम होता है। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है वो जनरली ऑकर होता है बिकॉज ऑफ कि जो हमारा एक जीन है वो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा आ गया है। ओके, देन जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हेरिडिटी है, वो भी बहुत रोल प्ले करता है जो मेंटल डिसऑर्डर्स में, लाइक कि हम साइकोसिस से डील करेंगे नहीं करेंगे, अल्कोहलिज्म होगा, देन सब्सटेंस रिलेटेड टू डिपेंडेंसी, डिप्रेशन, ये जो सारे मेंटल डिसऑर्डर्स है वो भी जनरली हमारे हेरिडिटी के साथ साथ में जो एनवायरनमेंट हमारा है उससे भी हमें ये इफेक्ट करता है। ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्रेट्समर एंड शेल्डन, एंडोमॉर्फिक पर्सन, अब ये एंडोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? एंडोमॉर्फिक मीन्स जो पर्सन्स लाइक इज़ बीइंग फैट, मतलब सिमिलर टू जो एक फैट पर्सन है, जो फ्लैशी बिल्ड है जिसका, उसको हम एंडोमॉर्फिक पर्सन बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्रेस्टमर एंड शेल्डन वो ये कहते हैं कि जो हमारा फिजिकल बिल्ड है उससे भी हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो सपोज अगर जो इंसान मोटा है या फिर फ्लैशी बिल्ड है उसका, सो दे आर मोर प्रोन टू मैनियक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। नाउ मैनियक डिप्रेसिव डिसऑर्डर मीन्स बाइपोलर डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है कि इंसान दो एंड पे होता है, आइदर वो मैनियक होगा या फिर वो डिप्रेसिव होगा। दैट इज़ कि अगर उसको मैनिक फेज चल रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी होगी, ही मे लीड टू एग्रेसिवनेस, उसको बहुत ज़्यादा स्पेंड करने को चाहिएगा, उसको बहुत कुछ बोलने को चाहिएगा, तो ये हो जाता है मैनिक फेज़ में। वाइल डिप्रेसिव फेज़ में क्या आता है, वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो अगर वो इंसान एंडोमॉर्फिक है, अगर वो फैट है या फिर फ्लैशी बिल्ड का है, तो जनरली वो इंसान मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर सफ़र कर सकता है। देन अगर जो इंसान वो है वो मीज़ोमॉर्फिक है, अब जैसे एंडोमॉर्फिक हो गया कि थोड़ा फ्लैशी बिल्ड, तो वैसे ही मीज़ोमॉर्फिक उसका अपोजिट हो गया, थोड़ा मस्कुलर बॉडी हो गई, जैसे जो एथलीट की बॉडी होती है वैसी बॉडी हो गई। तो जनरली वो जो उस टाइप का जो बिल्ड होता है बॉडी का, तो वो इंडिविजुअल साइकोसिस फेस कर सकते हैं। अभी नो दैट साइकोसिस क्या होता है कि वो अपनी रियलिटी है उससे दूर हो जाते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू क्रेस्टमर एंड शेल्डन की जो बॉडी बिल्ड है उसके हिसाब से भी जो अबनॉर्मल बिहेवियर है वो देखने मिलता है। देन अदर थिंग जो भी है वो ऐसे लाइक जो हमारा मेंटल है, कॉग्निटिव एबिलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए। सो अगर हमारे ब्रेन पे कोई इंजरी लगती है, अगर हमें कोई इंजरी होती है तो उससे भी हमारा डिसऑर्डर्स हो सकता है, जैसे कि लाइक मेमोरी लॉस हो सकता है, वी कुड स्टार्ट स्लीप वॉकिंग, एंड ऑल्सो अल्जाइमर हो सकता है। अल्जाइमर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेमोरी लॉस इन विच यू कम्प्लीटली फॉरगेट एवरीथिंग, मतलब आपको अपना कुछ भी याद नहीं रहता है, और सडनली इसके एपिसोड्स ज़्यादा रहते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आएंगे, देन उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, एंड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो इंसान सब कुछ भूल जाता है। तो ये सारे जो डिसऑर्डर्स है वो अगर ब्रेन पे इंजरी हुई है तो उस वजह से भी हो सकती है। सो ये सारे रीजंस थे हमारे बायोलॉजिकल कॉजेस में जिसके वजह से हमको अबनॉर्मल बिहेवियर होता है। तो हमने इसमें क्या क्या देखा? नर्व इम्पल्स देखा हमने, सिनेप्स देखा, देन इम्बैलेंस ऑफ एंडोक्रिनल ग्लैंड देखा, देन फॉल्टी जीन्स, देन फिजिकल स्ट्रक्चर एंड लेक्सिटी ऑफ ब्रेन, एंड ऑल्सो द एब्सेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ। सो अगर ये सारे कॉजेस रहते हैं तो इसके वजह से अबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। ओके, देन कम्स दी साइकोसोशल कॉजेस। Now what happens in psychosocial causes is that along with biological causes, psychosocial causes are very important and they are equally responsible for the abnormal behavior. So we know that the psychosocial causes include life experiences, problems, challenges, difficulties, etc. That shapes the behavior of an individual.
That is, in psychosocial causes, generally we study the socialization, we study parents, peers, families, and also the environment in which the individual resides. So what happens is, if in childhood there is deprivation, or if a child has faced trauma, if there are problems in marriage, or if there is a divorced family, improper behavior of parent, etc., all these are included in psychosocial causes. Okay. Then what happens in psychosocial causes, the experience of childhood are important because they create a lifelong impact on the mind of an individual. So what happens is, generally if parents are supportive, if parents are supporting their children, so they get warmth, security and support. And if parents are not able to provide support, security and warmth, then the child would start experiencing the abnormal behavior. And also, the amount of abnormal behavior is seen more in the child deprived by their parents. So जो बच्चे जो अपने पेरेंट्स से डिप्राइव्ड रहते हैं, जिनके या तो पेरेंट्स नहीं रहते हैं या जिनको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहता है, उन चिल्ड्रन में मेजरली अबनॉर्मल बिहेवियर देखा जाता है. देन अगर कोई चिल्ड्रन है या कोई चाइल्ड है, इफ़ दैट चाइल्ड वॉज सेक्शुअली अब्यूज्ड और वॉज एन विक्टिम ऑफ सेक्शुअल एग्रेसिवनेस, तो वो चाइल्ड भी अबनॉर्मल बिहेवियर प्रेजेंट करेगा. देन अदर थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस वार्मथ एंड सपोर्ट, जो सोशलाइजेशन होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कि जो सोशलाइजेशन मतलब जो हम एनवायरनमेंट में या जो हमारी सोसाइटी से घुल मिल रहे हैं, वो भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अबनॉर्मल बिहेवियर में. सो वी नो दैट फैमिली प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर सोशलाइजेशन. जो हमारा सोशलाइजेशन शुरू होता है वो हमारे फैमिली से शुरू होता है. सो जो हमारे पेरेंट्स हैं, सबसे पहले हम उनसे सोशलाइज करते हैं, हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं. तो अगर जो पेरेंट्स है, अगर वो एडजस्टमेंट नहीं दिखा पा रहे, सेटिस्फैक्ट्री एडजस्टमेंट नहीं दे पा रहे हैं फॉर इंटरेक्शन, फॉर सोशलाइजेशन, एंड ऑल्सो इफ़ दे आर नॉट सेंसिटिव, सो इस टाइप के पेरेंट्स जो रहते हैं उनके बच्चे में जो सोशलाइजेशन होगा वो प्रॉपर नहीं होगा. एंड सो अगर सोशलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, देन इट वुड लीड टू अबनॉर्मल बिहेवियर. सो जो फैमिली का बैकग्राउंड हो गया, हमारा रेसिडेंस हो गया, नंबर ऑफ़ पीपल हो गया हमारे फैमिली में, सो ये सारे फैक्टर जो है हमारे जो बिहेवियर है वो नॉर्मल रहेगा या अबनॉर्मल रहेगा, वो डिसाइड करते हैं. सो नॉर्मलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन दी पेरेंट्स, फैमिली, पीयर्स, फ्रेंड्स, रेसिडेंस और वर्क प्लेस एंड इंटरेक्शन विद अदर पीपल. सो जो हमारे क्लोज में हो गए और जो हमारे उनका जो इंटरेक्शन हो गया उनके साथ में, तो वो सारी चीज़ें जो आती है हमारे साइकोसोशल कॉजेज़ में आती हैं. ओके. Then comes the third and the last causes, that is sociocultural causes. Now what all are included in sociocultural causes? तो जो भी हमारे सोसाइटल नॉर्म्स हो गए, हमारे सोसाइटल कल्चर्स हो गए, उनके ट्रेडिशंस हो गए, वैल्यूज़ हो गए, वो जो जब सब कुछ है वो हमारे सोशल कल्चरल कॉजेज़ में इंक्लूड होते हैं. सो नाउ जो हम जानते हैं कि जो कल्चर है उनके अपने खुद के रूल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं. सो ये जो रूल्स, कल्चर्स एंड वैल्यूज़ है, उनके बेसिस पे जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं अदर ग्रुप के साथ में या अदर इंडिविजुअल के साथ में, उनका ग्रुप एटीट्यूड जो होता है वो डेवलप होता है. एंड ऑल्सो जो उनका पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट है वो उस बेसिस पे डेवलप होता है. सो ये जो सोशो कल्चरल फैक्टर्स है, जो कल्चर हो गए, सोसाइटी हो गए, वो भी हमारे अबनॉर्मल बिहेवियर के कॉजेज़ हो सकते हैं. जैसे कि अगर सोसाइटी में जो इंटरनल वीकनेस है या कल्चरल जो इंटरनल वीकनेस है, तो वहाँ पे जो है जो इंडिविजुअल्स है उनका अबनॉर्मल बिहेवियर देखा जा सकता है. जैसे कि एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न कल्चर, द फॉलोवर्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर आर मोर प्रोन टू अबनॉर्मल बिहेवियर. जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं जनरली उनमें जो है अबनॉर्मल बिहेवियर ज़्यादा देखा जाता है. बिकॉज वी नो दैट इन ईस्टर्न कल्चर वी बिलीव इन कलेक्टिविज्म, वी बिलीव इन शेयरिंग एंड सेक्रीफाइसिंग. सो जैसे और जो वेस्टर्न कल्चर है वो जनरली इंडिविजुअलिज्म में बिलीव करते हैं. सो अगर उनका बिहेवियर जो है उस बेसिस पे डिफाइन होता है, तो जनरली उसमें क्या होता है कि उनको अबनॉर्मल बिहेवियर देखने मिलता है. Then there are certain studies which were carried out. Once a study was carried out by Margaret Mead, in which the study was carried out on 2 tribal communities of New Guinea, and that those 2 tribal communities were Mundugumor and the Arapes. अब इन दोनों कम्युनिटी पे जब ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे जब उन्होंने स्टडी किया, तो उन्होंने ये देखा कि भले वो 2 कम्युनिटी एक ही एरिया में, एक ही फिजिकल एनवायरनमेंट में रह रही है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है. तो उन्होंने ये एनालाइज किया जो आरापेस कास्ट है वो जनरली मोर लिबरल है, काम है और कोऑपरेटिव है, वाइल वहीं जो दूसरी कास्ट है वो स्पेक्युलेटिव है, कॉम्पिटिटिव है, अग्रेसिव है. सो ये जो
भले फिजिकल एनवायरनमेंट सेम था लेकिन जो डिफरेंसेस आए दैट वाज बिकॉज ऑफ द सोशल कल्चरल कॉजेस. Then other study was conducted by Banner and that shows that अगर हमारा लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रह रहा है या फिर हमारे डिप्रेशन रहता था या फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा टाइम तक रह गया या अग्रेसिवनेस रह गया, then it would result into antisocial personality and antisocial personality is also a form of abnormal behavior. So जो हमारे कल्चर है, जो हमारा सोसाइटी है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमारे abnormal behavior के कॉजेज बन सकते हैं. सो ये 3 जो थे दैट इज़ बायोलॉजिकल कॉजेज, साइकोसोशल कॉजेज एंड द सोशल कल्चरल कॉजेज are all the basis, they form the basis for the abnormal behavior. Okay, if you have any doubt in this causes, let me know in the comment section, and over here we complete our topic, that is the causes of abnormal behavior.